یونیفارم سول کوڈ کے خلاف میڈیا پلس کانفرنس ہال ایبٹس پر ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں علماء، مشائقین اور ملت کے درد رکھنے والے شخصیات موجود رہے۔ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا مقصد مرکزی حکومت کی جانب سے یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش کرنے پر عوام کو بیدار کرنے کی غرض سے رکھی گئی ہے۔ اس موقع پر تحریک مسلم شبان کے صدر مشتاق ملک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی۔ آج 9 جولائی کو میڈیا پلس کے کانفرنس ہال میں کوئی 20 دینی، ملی، سماجی جماعتوں کے قائدین اور علماء و مشائخین کا ایک اجلاس ہوا، جس میں جمعیت العلماء، جماعت اسلامی، تحریک مسلم شبان، وحدت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، شیعہ علماء اور پھر مہدوی علماء اور اس کے ساتھ ایڈوکیٹ فورم، مسلم لیگ، کئی جماعتیں بہرحال آج کے اجلاس میں شرکت کی۔ آج کا اجلاس یکساں سول کوڈ کی بل کی مخالفت کے لیے رکھا گیا تھا۔ دراصل ملک میں اور پھر ہماری ریاست اور حیدرآباد میں ایک پرسیپشن یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی، اور اس ٹریپ میں بعض ہمارے ذمہ دار بھی آ رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ پر کوئی احتجاج نہ کیا جائے، اور اس سے پولرائزیشن ہوگا، ہندو مسلم بات ہوگی۔ دراصل بنیادی بات یہ ہے کہ میں اگر اپنے شریعت کے تحفظ کی بات کر رہا ہوں تو کوئی ہندو لا کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ ہندوؤں کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں، نہ دلتوں کے خلاف، نہ سکھوں کے خلاف، کوئی مذہب کے خلاف نہیں بات کر رہا ہوں۔ بات صرف قرآن اور حدیث کے مطابق شریعت نے جو سمجھیے کہ اصول ہماری زندگی گزارنے کے لیے بتلائے ہیں، اس شریعت کے تحفظ کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ہم کسی کو سمجھیے کسی کے دوسرے مذہب کی مخالفت نہیں کر رہے۔ اب یہ ایک احمقانہ بات کی جا رہی ہے کہ ہندو مسلم ہوگا۔ کیا ہندوؤں کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں اپنے شریعت کے تحفظ کے لیے؟ تو ایک پرسیپشن یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کے موقف کو کمزور کر دیا جائے، مسلمان اس پر اپنی آواز اور احساسات و جذبات کا کوئی اظہار نہ کر سکے۔ ایک بات کلیئر آج کے اجلاس میں ساری جماعتوں نے اور سارے سمجھیے کہ حاضرین نے، جس میں خواتین کی بھی تنظیمیں جو شریعت کے لیے کام کرتی ہیں وہ بھی آج موجود تھیں، سب نے ایک آواز یہ بات کہی کہ شریعت کے تحفظ کے لیے ہم اپنا آخری قطرہ خون بھی بہانے کے لیے تیار ہیں۔ شریعت میں کوئی تبدیلی کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ شریعت کا تحفظ ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے، اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اور پھر یہ کہ شریعت کے تحفظ یعنی دین کے تحفظ کے لیے علماء اکرام ہی نہیں بلکہ سابقون الاولون صحابہ اکرام نے، اور آخری مرحلہ جو قیامت تک کے لیے پیغام رہے گا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا 72 کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے اپنی شہادت دینا تھا۔ تو یہ شریعت کے تحفظ کا مسئلہ ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ آج کچھ باتیں اجلاس میں طے کی گئی ہیں۔ ایک جمعے کو تمام ریاست گیر پیمانے پر تلنگانہ کی تمام مساجد میں یوم عہد منایا جائے گا، یعنی مسلمانوں کو شریعت کے تحفظ، شریعت پر چلنے اور یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرنے کے لیے عہد دلایا جائے گا، جو ریاست کے تمام مساجد میں یہ عہد کا انتظام کیا جائے گا۔ تاریخ کا اعلان انشاءاللہ عنقریب ہوگا۔ نمبر 1
नंबर 2 ये कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। यहाँ से एक वफद दिल्ली का दौरा करेगा। उस दिल्ली के दौरे में जो पार्टी के फ्लोर लीडर्स हैं और जो पार्टी के सुदूर हैं, जो समझिए कि लोकसभा और राज्यसभा में, उनसे एक्सा सिविल कोड के मुज़िर असरात पर और शरीयत की अहमियत व इफ़ादियत पर और मुल्क की तारीख़ पर ये डेलीगेशन बात करेगा। उलमा और समझिए एडवोकेट्स एक 8-10 नुकात पर मुश्तमिल एक ड्राफ्ट की तैयारी करेंगे और वो ड्राफ्ट इंशाअल्लाह कल तक या परसों तक आ जाएगा और इमीडिएट असर के साथ एक डेलीगेशन दिल्ली जाएगा। तीसरी जो बात तय की गई है कि शरीयत की बेदारी के लिए मोहल्लेवारी सतह पर पैदल दौरे किए जाएंगे, पदयात्रा की जाएगी और लोगों से रास्त कांटेक्ट किया जाएगा। खड़े खड़े कॉर्नर मीटिंग्स ली जाएंगी ताकि लोगों तक शरीयत का पैगाम और शरीयत की हिफाजत की बात उन तक जाए। आज का ये इजलास तहरीक मुस्लिम शब्बान के ज़ेर एहतमाम मुनक्कद हुआ था, लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी की जितनी जमातें हैं वो तमाम जमातें और उलमा इकराम और तमाम मसालिक के ज़िम्मेदार आज के इजलास में शरीक रहे। आज का इजलास बहरहाल हैदराबाद का जितने इजलास समझिए कि होंगे उनमें यह सब मुनफरिद इजलास था कि तमाम जमातों की नुमाइंदगी आज के इजलास में थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर और जो ब्रांडेड लोग हैं उन ब्रांडेड लोगों को छोड़कर पूरी उम्मत की नुमाइंदगी आज के इजलास में थी। शुक्रिया। जो है जॉइंट एक्शन कमेटी और तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से ये कॉमन सिविल कोड के बारे में जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो लॉ कमीशन की तरफ से एक नोटिस इशू की गई थी, उसमें जो है आज एक मीटिंग बुलाई गई थी मीडिया प्लस पे, और मजलिस बचाओ तहरीक क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना स्टेट एंड आंध्र प्रदेश की मेंबर है, तो हमारे को भी हम भी आए थे और हमारे तजावीज़ पेश किए गए। सबसे पहले तो ये जो कॉमन सिविल कोड है इसको ऐसा पेश किया जा रहा है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ में है और शरीयत में इसकी मदाखलत है। यकीनन ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और जो सोची समझी साजिश के तहत जो हिंदुत्व लॉबी काम कर रही है, ये कॉमन सिविल कोड बोलिए या ये जो भी आप इसका नाम रखिए, तो इसके पीछे एक आरएसएस और हिंदुत्व की एक बड़ी लॉबी काम कर रही है। 50 साल से ये लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दूसरे जो हिंदुइज़म में भी जो फ़िरक़े हैं, जो तबक़े हैं उनके, जैसा आदिवासी से, आदिवासी इसमें जो है एक एक्स्ट्रा उनका एक जुडिशल पावर ये है कि आदिवासी की ज़मीन कोई ख़रीद नहीं सकते, आदिवासी ज़मीन बेच नहीं सकता। हिंदुइज़म में भी कई ऐसे वाक़यात है, हर स्टेट में हिंदुइज़म में अलग अलग क़ानून है उनका। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये मजहबी आज़ादी अलग रखे थे ये। अब क्योंकि आरएसएस का एक हिडन एजेंडा है कि सबसे पहले इनका हिडन एजेंडा ये है कि मुसलमानों को मारो, उसके बाद में आदिवासियों को मारो, दलितों को मारो। तो अब ये लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसमें जो हरकत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो जॉइंट एक्शन कमेटी, क्योंकि एनआरसी के वक्त भी जॉइंट एक्शन कमेटी बेहतरीन एहतजाज किया था जनाब मुश्ताक मलिक साहब की सदारत में, तो इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसा जॉइंट एक्शन एनआरसी के वक्त में 1 मिलियन मार्च किया गया था, अभी भी वैसी एक तजवीज़ रखी गई है। और ख़ास तौर पर इस मीटिंग के द्वारा ये फ़ैसला किया गया है कि चीफ़ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की जो बीआरएस पार्टी है उसका मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए और जगन मोहन रेड्डी जो वाईएसआरसीपी के उनका मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। और तेलुगु देशम, इन तमाम ये 3 जो बड़ी जमातें हैं साउथ की, इन पे हम प्रेशर डालेंगे कि वो आने वाली अगर बिल पार्लियामेंट में पेश होती है तो उसकी मुखालिफत करे, क्योंकि ये हर पार्टी में जो है इनको इक़्तिदार पे लाने पे मुसलमानों का बड़ा हाथ रहा है। तो ये तजावीज़ आज तय है। फिर आइंदा जो भी इजलास में होगा 1 मिलियन मार्च के ऊपर भी एक बात आई है, तो इंशाल्लाह हैदराबाद बी रेडी फॉर 1 मोर मिलियन मार्च। आज मीडिया प्लस पर जॉइंट एक्शन कमेटी और तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक साहब की जानिब से
यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक़ से उन्वान रखा गया था। इस पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा और इसको कैसा काउंटर देंगे। तमाम ज़िम्मेदार लोग यहाँ पे आए, उलमाए दीन, मशाखीन, सियासी लोग जो मिल्लत का दर्द रखते हैं, और कई NGOs, कई एसोसिएशंस आए, ख़वातीन आई यहाँ पे। इस उन्वान पे डिस्कस हुआ कि ये जो हुकूमत है एन इलेक्शन के करीब आकर हम पर एक चीज़ लेके आती है, जैसा आर्टिकल 370 लेके आई है, ट्रिपल तलाक़ लेके आई है। फिर अब इलेक्शन के ऐन करीब यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसको यूनिफॉर्मिटी में लाना चाह रहे हैं उसकी क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, जिससे मुतासिर होने वाले सरदार भाई थे, सिख भाई थे, हमारे पारसी भाई थे, ट्राइबलर्स थे। तो इनको एक आप एश्योरेंस दे दिए कि आपको कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं होगा, हम आपके लिए इसमें अमेंडमेंट्स लाएंगे, हम आपके लिए इसमें अलग रखेंगे। सिर्फ टारगेट होगा तो सिर्फ मुसलमान टारगेट होगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मुसलमान के लिए अल्लाह के रसूल के बाद अगर कोई चीज़ को मुसलमान समझता है तो शरीयत है, और हमारा पूरा ईमान अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे, और हम शरीयत पे चलने वाले हैं। और यूनिफॉर्मिटी अगर आपको हकीकत में लाना है तो हिंदुस्तान तो सिर्फ एक मुल्क है, पूरी दुनिया में अगर चलती है कुछ मुसलमान की तो शरीयत पे चलती है। शरिया से कितने फ़ायदे हैं आप देखिए, उसकी यूनिफॉर्मिटी ला दीजिए आप हिंदुस्तान में। जो हमारे हिंदू भाई सुप्रीम कोर्ट के सर्वे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 50 लाख से ज़्यादा हिंदू भाइयों के केसेस डिवोर्स के चल रहे हैं। जिसकी उम्र 27 साल थी वो बेचारा शादी करा था, अब उसकी उम्र तकरीबन 12-14 साल, 18 साल से उसका केस चल रहा है, 40-45 साल का हो गया। वो बेचारा जब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता उसका फ़ैसला नहीं, उसकी तो पूरी जवानी वेस्ट हो गई, वो बहन की पूरी जवानी वेस्ट हो गई। तो लिहाजा इससे नुकसान आपका है, हमारा नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम है, तो आप वो इम्प्लीमेंट करिए जो अच्छा रहता। अब ये कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ एक चीज़ लेके आते जा रहे हैं, मुसलमान इसको बर्दाश्त भी नहीं करेगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक़ से हम बहुत कड़ी मजम्मत करते हैं, और हम आवाम को भी बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आप देखिए, अभी तक ड्राफ्ट नहीं बना है, आप पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। अगर आप वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं तो सबके लिए आप लाके बताना था आप क्या करने वाले हैं। ये साजिशें 200 साल से चलते हुए आ रही है, और इंशाअल्लाह मुसलमान बहुत मजबूत है और इस चीज़ को बराबर बाइकआउट करेगा। और जितने सियासी लीडरान हैं, जितने लोग तेलंगाना हुकूमत है, हम सबसे यही बोलेंगे कि आपका स्टैंड क्या है बताइए, और बराबर इसके एहतजाज भी करेंगे, और हम शरीयत के फ़ायदे और अवेयरनेस भी बताएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हजरात मुस्तहज़र हैं कि यकसा सिविल कोड का मसला हिंदुस्तान में और उधर स्वीडन में जो कुरान मजीद को किसी बदबख्त ने जो जलाया है, उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर एक एहतजाज मुश्तरका तौर पर मुनज़्ज़म किया गया था। क्योंकि ये एक मुश्तरका मसला है, इसमें तमाम मुसलमान शरीक हुए, तमाम जमातें इसमें शरीक हुई, क्योंकि ये हमारा मुश्तरका मसला है। और जब भी ऐसा कोई मसला पेश आएगा, यकीनन हम तमाम मुसलमान इकट्ठा होकर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ एहतजाज बुलंद करेंगे। यहाँ पर इसका बेहतरीन मुज़ाहरा यहाँ पेश किया गया है। मैं मुसलमानों से ख्वाहिश करूँगा कि हर मुसलमान इस मसले को समझे और इसमें हिस्सा ले, गौर करे कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं आलमी पैमाने पर भी और हमारे मुल्क के अंदर भी, कि कोई चीज़ शहरियों पर थोपी नहीं जा सकती है जब तक कि जो है रेफरेंडम न कराया जाए और पाक और शफाफ रेफरेंडम ना हो। किसी भी शहरियों पर कोई क़ानून जो है किसी एक जमात के ज़रिए से थोपा नहीं जा सकता है। देखिए, हम हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो बहुत मोहतरम लोग हैं। हम एक बहुत बड़े मुल्क के शहरी हैं, इसको समझना चाहिए, और हम बहुत अमीर मुल्क के शहरी हैं, इसको भी समझना चाहिए कि हमारे मसाइल हैं, हमारे एक एक फ़र्द की अहमियत है। अब आप देखेंगे कि हुकूमत हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उसको हल नहीं कर रही। हमारे शहरियों की बसेस देखिए कैसी हैं, किसी भी मुल्क में ऐसी बसें नहीं हैं। आप देखिए, ईरान में जो है वो 40 साल पहले जो है बेहतरीन बसें, और 40 साल पहले जो है मेट्रो तेहरान के अंदर ज़मीन के अंदर से ले जाया गया। इतने दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन हमारे मुल्क में बुनियादी मसाइल से शहरियों को महरूम रखा जा रहा है, और उनके मसाइल को हल नहीं करके दूसरे इसमें जो है दूसरे मसाइल में, गैर ज़रूरी मसाइल में, और बार बार एक के बाद एक मसला जो है मुसलमानों को उलझाने के लिए पेश किया जा रहा है, ताकि लोग इसी
में उलझते रहें और बुनियादी मसाइल से लोग गाफिल रहें। यही हुकूमतों का मकसद होता है जो हो रहा है। कभी बाबरी मस्जिद था, कभी कुछ था, कभी कुछ था, कभी सीए का मसला, और आज जो है यकसा सिविल कोड का मसला, उसके बाद फिर कोई मसला आते ही रहेगा और मुसलमान को जो है इसमें मसरूफ़ रखा जाएगा। तो मैं सबसे यही ख्वाहिश करूँगा कि आप लोग जो है शऊर पैदा करें और सारे मुसलमान मुत्तहद होकर आवाज़ उठाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर अनवर ख़ान आज मीडिया प्लस पर यूसीसी के सिलसिले में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। जनाब मुश्ताक़ मलिक साहब मुस्लिम शिब्बान की जानिब से, जिसमें सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस, NGOs और इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स सभी शामिल रहे। बहुत सारी बातें यूसीसी के सिलसिले में आई, दस्तूरी नुक़्ते नज़र से, क़ानूनी नुक़्ते नज़र से, फिर सियासी जमात का क्या उसके पीछे अल्टीमेट मकसद है, यही कि उसके ज़रिए से जो है सियासी फ़ायदा उठाया जाए आइंदा 2024 के इलेक्शन में। लिहाजा उनकी नीयत इसमें गलत है लाने में। असल वो टारगेट करना चाहते हैं मुसलमानों को, मुसलमानों की शरीयत को। उस शरीयत को टारगेट के ज़रिए से पोलराइजेशन कर देंगे, फिर वही हिंदू मुस्लिम बनाएंगे, उसके ज़रिए से अपना उल्लू सीधा करेंगे, सियासी उल्लू सीधा करेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ में आ गई सबको। चुनांचे आप देख रहे हैं कि दूसरे और ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो लेटर दिया गया है, नोटिस दी गई है कि सभी भारतवासी इस सिलसिले में रिस्पांस दें उस सिलसिले में। तो बाज़ जैसे दलित हैं, सिख हैं और फिर आदिवासी हैं, इन लोगों की जानिब से जब एहतजाज का आवाज़ उठाई गई तो फ़ौरन रिस्पांस आया उस कमेटी की जानिब से कि इनको इससे जो है मुस्तस्ना करार दिया जाएगा, एग्ज़म्प्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब ऐसा ही करना था तो ये सब एक्सरसाइज जो की जा रही है ये लाहासिल एक्सरसाइज है। यानी जब मकसद आपका ये था कि इनको निकालना है तो ख़त्म निकाल दीजिए फिर। तो उसी तरीके से जो है ये ऐलान कर दीजिए कि सब एग्जम्प्टेड है, ख़त्म होगी बात इसमें। तो बहरहाल बहुत घिनौनी चाल के तहत हुकूमत इलेक्शन के सामने इस बात को लाई है। जहाँ तक मुस्लिम स्टैंस है वो ये है कि हम ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे। आपने हमसे पूछी है राय, हम देंगे, इसके सिलसिले में राय देंगे कि नहीं चाहिए फ़िल वक्त। क्यों कि यही लॉ कमीशन ऑफ इंडिया गुज़िश्ता जस्ट 1 साल की पहले की रिपोर्ट उसने दी थी कि यहाँ भारत में इसकी ज़रूरत नहीं है, ना अब इसके हालात हैं इसको नाफिज करने के। फिर आप खुद ही इसको तजावीज़ पूछ रहे हैं। चलिए तजवीज़ देते हैं हम इस सिलसिले में। अब भी यही कहते हैं कि अभी भी भारत में इसकी ज़रूरत नहीं है। जो क़वानीन हैं, मुख्तलिफ़ पर्सनल लॉस हैं, वो काफ़ी हैं इसके लिए, यहाँ के लिए, उनकी अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए। ये गैर ज़रूरी एक शोशा जो है ये छोड़ा गया है, ये मुनासिब नहीं है। इसको वापस लेना चाहिए, उनको फ़ौरन लेना चाहिए, इससे पहले कि एहतजाज बहुत तेज़ी से आए। ये ख़ुद तजावीज़ जो जा रही हैं ये ख़ुद भी एहतजाजी तजवीज़ है। ये कोई आपको शाबाशी नहीं दे रहे हैं सरकार को, ना हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप कीजिए, आगे बढ़िए, बल्कि हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, हम आउटराइट जो है हम इसको जो है रिजेक्ट करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उभर कर बात आई है। अब इस पर जो जैसे जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, क़ानून इजाज़त देता है, जमहूरी तर्ज़ हुकूमत है हमारी, उस एतबार से हम कोर्स ऑफ एक्शन जो है तय होता रहेगा और उस तरीके से ये कम्युनिटी आगे बढ़ती रहेगी। और इसमें हम पीछे नहीं रहेंगे या किसी से आइसोलेटेड नहीं रहेंगे और सबको इसमें साथ लेकर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खुशाइन बात है इस मरतबा खुसूसन दूसरे लोग सब आवाज़ उठाए हैं, जिसमें सिख शामिल है, जैन शामिल हैं, जिसमें आदिवासी शामिल हैं, जिसमें दलित शामिल हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं जो खुदा को नहीं मानने वाले हैं, वो लोग भी इसके अंदर शामिल हैं इसकी मुखालिफत करने में। इसलिए कि अल्टीमेट इसका जो नुकसान होने वाला है, अल्टीमेट वो नुकसान मुसलमानों से ज़्यादा दूसरों को होने वाला है।
یہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں سوچتے ہیں وہ جان گئے ہیں، چنانچہ وہ لوگ اگزامپل دیتے ہیں NRC کے سلسلے میں وغیرہ، جیسا کہ آسام میں وہ لوگ لاگو کر دیے اس کو، وہاں پر لاگو کرنے کے بعد میں کیا ہوا، وہاں پر 19 لاکھ لوگ نکلے اس میں NRC میں، اور 19 لاکھ میں 15 لاکھ جو ہے نان مسلم تھے، 4 لاکھ مسلم تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ قانون بھی، حالانکہ وہاں بھی ہدف مسلمان ہی تھے نا، مسلمانوں کو نکالنا تھا، تو وہ نکال نہیں سکے، وہ کام نہیں کر سکے۔ لہٰذا اس UCC کے ذریعے سے بھی زیادہ نقصان میں آنے والے دوسرے ہیں، نان مسلمس ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو ہے عقل کے ناخن بولتے ہیں نا، اس کو یہ کرنا چاہیے، چوکنا ہونا چاہیے، وہ لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر یقیناً ایگزمپشن کے لیے جو ہے لڑنا چاہیے، وہ لوگ بھی آگے آنا چاہیے، اپنی بات بتانا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ اس موقع پر جو بات کرنی چاہیے وہ ہے لا میکرز پارلیمنٹ میں، چاہے راجیہ سبھا کے ممبر ہوں یا لوک سبھا کے ممبر ہوں، وہ اس بل کو جب آتا ہے بل کی مخالفت کریں، پورے دلائل کے ساتھ مخالفت کریں، خصوصاً مسلم ممبران پارلیمنٹ، چاہے وہ 4 ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سیکولر ذہن کے اپنے آپ کو کہتے ہیں پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں، وہ سب بھی چاہے ریجنل ہو یا نیشنل پارٹیاں ہوں، وہ سب بھی اس بل کی مخالفت میں جو ہے آواز اٹھائیں۔ اور ضرور اگر وہ لوگ آگے بڑھیں گے تو جیسے بہت سارے موقعوں پر ہوا ہے کہ اگر لوک سبھا میں ان کی اکثریت ہونے کے باوجود، اکثریت کے بھرے پر یہ لوگ بل لائیں گے، ہو سکتا ہے وہاں منظور ہو جائے، لیکن وہی بل راجیہ سبھا میں جب جائے گا تو وتھیلڈ ہو جائے گی، وہاں ناکامی ہو جائے گی اس بل کو۔ تو یہ ہم اپیل کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ خصوصاً لا میکرز جو ہیں، ہمارے MPs ہیں راجیہ سبھا میں اور لوک سبھا کے، وہ لوگ جو ہے اس مرتبہ سترک ہو جائیں وہ لوگ، اور جو ہے کوئی ایسی ہمارے ساتھ کوئی یہ نہ کریں مسلمانوں کے ساتھ، بہرحال میرٹ کی بنیاد پر یہ وہ لوگ تعاون کریں، آواز اٹھائیں یہ اس بل کے خلاف، کہ یہ سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا سب کو ایگزمپشن دیا جائے، پہلے تو لایا ہی نہیں جائے، کس نے کہا تھا، کس نے ڈیمانڈ کیا تھا آپ سے؟ آپ خود اپنی جانب سے انیشیٹ لیتے ہیں غیر ضروری۔ بہرحال ایسی باتیں بہت ساری آئی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔